Good morning, dear students. I am going to discuss you about acid, base and salt. So far in my previous video I have discussed to you how we determine the strength of acid and base, and then after I have discussed to you pH scale, and then after importance of pH in everyday life, like pH in our digestive system, pH change as the cause of tooth decay. Next one, plant and animals are sensitive to pH, है ना. Then after I have discussed to soil pH and plant growth. Then pH change and survival of animals. Next topic I have discussed to you self-defense by animals and plant through chemical warfare. Today's topic is beta salt. About salt. Do you know what are the salts? A salt is a compound formed from an acid by replacement of hydrogen in the एसिड बाई मेटल्स. समझ में आ रही बात किसे कह रहे हैं? सॉल्ट इज अ कंपाउंड. सॉल्ट एक तरह के कंपाउंड होते हैं. कैसे बनते हैं? फॉर्म्ड फ्रॉम एसिड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय मेटल्स के द्वारा हाइड्रोजन का रिप्लेस करके सॉल्ट बनते हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl. इफ वी रिप्लेस द हाइड्रोजन ऑफ दिस एसिड बाय मेटल एटम, देन वी विल गेट सॉल्ट NaCl. दिस इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड. इट इज अ सॉल्ट. सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस. जनरली सॉल्ट कब बनते हैं? जब एसिड रिएक्ट करते हैं किससे? बेस से, तब सॉल्ट बनते हैं. द सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड्स. द सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सल्फेट्स. सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड्स आर कॉल्ड नाइट्रेट्स. सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड आर कॉल्ड कार्बोनेट्स. Salt of acidic acid are called acetates. Family of salt. The salt having same positive ion or same negative ion are said to belong to salt family. एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ले हैं एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड NaCl and sodium sulfate Na2SO4 belong to same family called salt family, sodium salt, because they both contain the same positive charge ion, sodium ion Na+. Similarly, sodium chloride NaCl and potassium chloride KCl belong to same family of salt called chloride salt, because they both contain the same negative charge ions, chloride ions. Some examples I would like to give you, some examples of salt family. Here are some examples. Please notice this. Sodium chloride NaCl, calcium chloride CaCl2, magnesium chloride MgCl2, zinc chloride ZnCl2, sodium sulfate Na2SO4, sodium potassium sulfate K2SO4, calcium sulfate CaSO4, magnesium sulfate MgSO4, aluminum sulfate Al2SO4 thrice, zinc sulfate ZnSO4, copper sulfate CuSO4, ammonium sulfate NH4 twice SO4, sodium nitrate NaNO3, potassium nitrate KNO3, sodium carbonate Na2CO3, calcium carbonate CaCO3, zinc carbonate ZnCO3, sodium acetate CH3COONA. These are the some important salt and their formulae.
You must have to memorize it, their formulae also. In 9th standard you have to learn about the formula of the compound, how we derived the formula of compound, है ना. Now here are some examples of different types of salt. Now the pH of salt solution. Topic is pH of salt solution. A salt is formed by reaction between acid and base, as I said to you. So we should expect that the solution of salt in water will neutral towards the litmus. सॉल्ट सॉल्यूशन लिटमस के लिए क्या होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए. ऑल्दो द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मैनी सॉल्ट आर न्यूट्रल. एक्वा सॉल्यूशन जो अधिकतर सॉल्ट के होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, हैविंग पीएच वैल्यू ऑफ 7. बट सम सॉल्ट प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन. कुछ सॉल्ट एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं. एल्केलाइन सॉल्यूशन कहते हैं हम उनको, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर. जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें सोडियम क्लोराइड, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी. पीएच वैल्यू 7 है तो ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा. अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इट्स पीएच वैल्यू इज 6, देन इट्स पीएच इज 6, दैट इज लेस देन 7, देन इट विल बी एसिडिक सॉल्यूशन. सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, pH value is 9, it is basic or alkaline. You are noticing here the pH value increase from 7 to 9, that's why it is basic or alkaline. Acidic nature and basic nature of the some salt can be explained on the basis of hydrolysis of salt. इसको हम हाइड्रोलाइसिस के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यह एसिडिक है या बेसिक सॉल्ट है. अब जैसे द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसेस गिव न्यूट्रल सॉल्यूशन. एक चीज़ आप ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं. पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी. सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, to understand this point, sodium chloride NaCl is formed from strong acid hydrochloric acid HCl, strong base sodium hydroxide NaOH. You know that since sodium chloride is formed from strong acid and strong base, therefore aqueous solution of sodium chloride is neutral. इसका जो aqueous solution होगा वह क्या होगा बच्चों, न्यूट्रल होगा. Its aqueous solution will be neutral towards the litmus, having pH value of 7. Thus next is the salt of strong acid and weak base give acidic solution. जो सॉल्ट जो बनेगा किससे, स्ट्रॉन्ग एसिड से और वीक बेस से, वह कैसा होगा, एसिडिक होगा. हैविंग पीएच लेस देन 7, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7 से कम होगी. एग्जाम्पल के लिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl is a salt of strong acid hydrochloric acid HCl and weak base ammonium hydroxide NH4OH. So an aqueous solution of ammonium chloride is acidic in nature. इसका जो नेचर होगा वह कैसा होगा, एसिडिक होगा. एक एग्जाम्पल के तहत हम देखते हैं इसको, जैसे NH4Cl सॉलिड है ये, प्लस H2O लिक्विड है. क्या बनाएगा, हाइड्रोलाइसिस होगी. डबल हाफ हेड एरो से दिखाएंगे इसको, यहाँ पर लिख देंगे हाइड्रोलाइसिस. It will formed
NH4OH, NH4OH एक्वस सॉल्यूशन होगा ये भी इसका, NH4OH का, प्लस HCl एक्वस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज यू नो, है ना, विच इज फुल्ली आयोनाइज्ड एंड गिव लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। पूर्णतः आयोनाइज होकर काफ़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा, H+ आयन देगा। ऑन द अदर हैंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस है, विच इज स्लाइटली आयोनाइज एंड गिव स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन्स। सिंस अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन कंटेन मोर हाइड्रोजन आयन देन हाइड्रोक्साइड आयन, इट इज एसिडिक इन नेचर। इट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। यह जो है ब्लू लिटमस को क्या कर देगा? रेड कर देगा। अगली बात आती है द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव बेसिक सॉल्यूशन। कैसा देंगे? बेसिक सॉल्यूशन देंगे। यहाँ पर आपने देखा ये वीक बेस आया था, ये क्या था? वीक बेस था। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है ये, है ना। इस एग्जाम्पल में ये आपने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हम समझ रहे हैं बात को। द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव बेसिक सॉल्यूशन। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड कार्बोनिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सो एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विल बी बेसिक इन नेचर। सोडियम कार्बोनेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? बेसिक होगा, मीन्स एल्केलाइन होगा, वो उसकी प्रकृति एल्केलाइन होगा। इट विल बी एल्केलाइन इन नेचर। अब इसके लिए हम देखते हैं Na2CO3। Na2CO3 सॉलिड स्पेस में है, ये स्टेट में है। इसको हम डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में, H2O लिक्विड। हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइसिस लिखोगे, हाइड्रोलाइसिस इट विल फॉर्म NaOH एक्वस प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड एक्वस हुआ, ये भी एक्वस। इसको हम क्या कहेंगे? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ये क्या है? वीक एसिड है बच्चों। क्या है ये? वीक एसिड। इट इज अ वीक एसिड। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, क्या हुआ इसमें? हमने क्या किया? व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज डिजोल्व इन वाटर, सोडियम कार्बोनेट इज डिजोल्व इन वाटर, इट गेट हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइज, यह जो है हाइड्रोलाइज हो जाएगा और कुछ मात्रा में हाइड्रोलाइज होगा और क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड बनाएगा। Sodium hydroxide is strong base which is fully ionized and give large amount of hydroxide ion, OH ions. On the other hand, carbonic acid is weak acid which is only slightly ionized and hence give small amount of hydrogen ions. Since the sodium carbonate solution contain more of hydroxide ion than hydrogen ion, so it is basic in nature. OH आयन की संख्या ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा है, तो यह क्या हो जाएगा? किसकी अपेक्षा? H आयन की, H+ आयन की अपेक्षा OH आयन की संख्या, मात्रा जो है ज़्यादा हो जाएगी, तो यह क्या होगा? बेसिक सॉल्यूशन होगा। आ रही बात समझ में? फिर समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में।